हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 21 जून। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे 2024। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस 2024 का विषय क्या है। आपके ऑप्शंस हैं, होप थ्रू प्रोग्रेस, एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली, स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स, एक्सेस टू जस्टिस, या फिर सीफेरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर। आपको बताना है कि विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस जो है उसका थीम क्या है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इस वर्ष की थीम है होप थ्रू प्रोग्रेस, एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली। आप यहाँ देख सकते हैं। Sickle Cell Illness Day is observed on 19th of June, and this day promote awareness about the condition's treatment options and to achieve successful control of the disease across the world. Sickle cell disease की बात करें तो it is hereditary anemia in which the RBCs in the body fail to transport the needed quantity of oxygen. Normally, the form of RBC cell is spherical. However, with this condition, the shape of RBC is changed to that of a crescent moon sickle, making it difficult for them to circulate in the body. And they frequently get lost in a tiny blood artery and prevent blood from flowing to another section of the body. ये प्रॉब्लम होती है सिकल सेल एनीमिया। आप ध्यान रखेंगे कि सिकल सेल एनीमिया जी डे हम सेलिब्रेट करते हैं 19 जून को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रेट स्कीम। यहाँ पर ग्रेट स्कीम से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, it aims to encourage young innovators and startup venture in the field of artificial intelligence to translate their ideas into commercial technologies and products. And second, a grant in aid of up to rupees 50 lakh for up to a period of 18 months will be provided. यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है ग्रेट स्कीम से संबंधित कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर आपका सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं। ग्रेट का फुल फॉर्म होता है ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स। GREAT encourages young innovators, scientists, technologists, and startup ventures in the field of technical textile to translate their ideas into commercial technologies or products and make India self-reliant. तो आप ध्यान रखेंगे, ग्रेट स्कीम जो है इसका संबंध है टेक्सटाइल से। It supports individual entrepreneurs or startups for functional prototype or commercialization of their technologies for technical textile. The mission aims to position India as a global leader in technical textile. इस स्कीम में ग्रांट इन एड प्रोवाइड किया जा रहा है अप टू 50 लाख का, और ये 18 मंथ के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जीनोम्स। यहाँ पर जीनोम से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, the genome of an organism includes all of its DNA, including both the genes and non-coding sequence. And second, mitochondrial DNA is part of the human genome and is inherited exclusively from mother. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है
कि जीनोम से संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं आपके। आप यहाँ देख सकते हैं, द ह्यूमन जीनोम इज कंपोज्ड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3 billion base pairs and contains both nuclear DNA and mitochondrial DNA. So the nuclear genome is inherited from both parents while the mitochondrial genome is maternally inherited. Non-coding sequence, which makes up a large portion of the genome, plays various roles in regulating gene expression and maintaining chromosome structure. तो ये रहा जीनोम से संबंधित कुछ फैक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Where in Bihar is the new campus of Nalanda University located, which was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर कहाँ स्थित है, जिसका उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? आपके ऑप्शंस हैं पटना, गया, राजगीर या फिर भागलपुर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये स्थित है राजगीर में। आप यहाँ देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड the new campus of Nalanda University in Rajgir, Bihar, and the new campus is built at a cost of rupees 1749 crore. So it includes 2 academic blocks with 40 classrooms, 2 auditoriums, a student hostel, an international center, amphitheater, a faculty club, and sports complex. So the campus is designed as a net zero green campus featuring solar plants, water treatment plants, and water recycling facilities. नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसको फाउंड किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था 5th century में, and it was a renowned monastic and educational center. The historic institution thrived for 8 centuries until it was ravaged by invaders in the 12th century. और इस साइट को यूनाइटेड नेशंस हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था 2016 में। आपको कमेंट करके बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किस गुप्त शासक के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन की यू, who launched the website and mobile application for World Food India 2024? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं श्री पीयूष गोयल एंड नीतीश गडकरी, श्री चिराग पासवान एंड श्री रवनीत सिंह, नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह या फिर श्री राजनाथ सिंह एंड श्रीमती निर्मला सीतारमन। आपको बताना है कि वर्ल्ड फूड इंडिया से संबंधित वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किसके द्वारा किया गया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको लॉन्च किया गया है चिराग पासवान और रवनीत सिंह के द्वारा। आप यहाँ देख सकते हैं। So World Food India 2024 aims to promote the food processing sector and reduce agricultural waste. The event will foster collaboration and partnerships among global and Indian food sector stakeholders. So Shri Chirag Paswan highlighted the importance of food processing sector in ensuring food security and strengthening the supply chain. And Shri Ravneet Singh emphasized the transformative potential of advancements in food processing technologies. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Scientists from which 3 countries developed a catalyst to produce cheaper biodiesel? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है
किन 3 देशों के वैज्ञानिकों ने सस्ता बायोडीजल बनाने के लिए उत्प्रेरक विकसित किया है? आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, चाइना एंड यूके। सेकंड, इंडिया, जापान एंड यूएस। थर्ड, चाइना, जर्मनी एंड कनाडा, या फिर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड फ्रांस। आपको बताना है कि ऐसा करने वाले 3 देश कौन से हैं जिन्होंने बायोडीजल बनाने के लिए, सस्ता बायोडीजल बनाने के लिए उत्प्रेरक को विकसित किया है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये कंट्रीज हैं इंडिया, चाइना और यूनाइटेड किंगडम। आप यहाँ देख सकते हैं। अब वाटर रिपेलेंट कैटलिस्ट was developed by a team of scientists from Assam and Odisha in India, China, and United Kingdom. So this catalyst can substantially cut the cost of producing environmentally begin biodiesel, and the study was published in the journal Advanced Functional Materials. So the catalyst derived from biomass is eco-friendly and highly affordable. सो बायोफ्यूल की बात करें तो ये एक तरीके का फ्यूल होता है दैट इज प्रोड्यूस्ड ओवर अ शॉर्ट टाइम स्पेन फ्रॉम बायोमास रादर देन बाय अ वेरी स्लो नेचुरल प्रोसेस involved in the formation of fossil fuels such as oil. ऐसा करने वाली जो 3 कंट्रीज हैं उनका नाम आप ध्यान रखेंगे, वो है इंडिया, चाइना और यूके। आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।